Okay, hello everyone, and welcome to your CA Inter SM classes. हम अपने SM की क्लासेस आज से शुरू करने वाले हैं and in SM strategic management we will have approximately around 15 classes. That's what we should be taking approximately to wrap up the entire syllabus. एक छोटा सा syllabus है हमारा SM का as compared to FM. तो हमारे 100 मार्क के पेपर में दोनों हाफ बहुत ही सिमिलर साउंडिंग है, FM एंड SM. ठीक है ना, FM एंड SM दोनों फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंबाइंड टुगेदर इज आवर 100 मार्क पेपर. उनमें से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अपना 50 मार्क का एक अलग सेकंड हाफ है जो प्योरली एक थ्योरी पार्ट है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट FM के अंदर मेजरली प्रैक्टिकल्स है, कुछ थ्योरी है अपने सिलेबस के अंदर, बट SM इज अ प्योर थ्योरी पेपर जो अपने सिलेबस में आ रहा है. Now, first few minutes we will have a lot of discussions about SM history, SM syllabus, SM preparation styles, SM subject and how we will approach, and then slowly we will move towards the syllabus and chapters. So just to give you a little background about this, CA के इंटर के सिलेबस में, इंटर से पहले IPCC होता था, उसके पहले भी इसको इंटर बोलते थे. SM हमेशा से सिलेबस में रहा है, ठीक है ना. इट्स ऑलमोस्ट बीन व्हाट आई कैन से 15 इयर्स SM हमेशा से रहा है इंटर के सिलेबस में. SM के साथ पहले IT हुआ करता था एंड द सब्जेक्ट वाज IT SM. फिर IT को चेंज होकर EIS बोलकर एक सब्जेक्ट आया एंड इट बिकेम EIS SM. और अब FM के साथ ये जुड़ गया है एंड द सब्जेक्ट हैज बिकम FM SM. दैट्स हाउ द सब्जेक्ट हैज, द सेकंड पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट हैज चेंज्ड बट SM हैज रिमेन्ड कांस्टेंट. नाउ SM के सिलेबस में राइट फ्रॉम IT SM era, then EIS SM era and then the FM SM era, the SM syllabus, I will say approximately 50% content has remained standard and same across the three generations as we may call it. But they have, ICAI have done a revamp of the syllabus which was necessary according to the changing times. तो हमने IT SM के ज़माने से EIS SM में आते हुए SM के सिलेबस में काफ़ी चेंजेस आते हुए देखा, और इस EIS SM के SM से FM SM के SM में एक बहुत मेजर चेंजेस आते हुए देखा. So just to give you a little idea about how the syllabus changed from 2023 to our syllabus, the 2023 syllabus to our syllabus. So the major change that has happened is, अगर कोई book wise content wise देखे तो पहले 8 chapters थे of approximately around 30 chapters, 30 pages, and now we have got 5 chapters of about, let's say पहला 4 chapter average 30 pages का है, last वाला you can say about 60 odd pages, let's say about 5 chapters 180 odd pages, about 35-36 pages. so जहाँ अगर आप टोटल देखोगे तो टोटल हमारे लिए पेजेस कम हो गए. वाह सर, ये पहला बार एक अच्छा न्यूज़ सुनने मिल रहा है, सिलेबस कम भी होता है. हाँ जी, सिलेबस कम हुआ है SM का एज कम्पेयर टू जो पहले था, लेकिन हमारा SM का पेपर ओवर इयर्स थोड़ा सा ना क्वेश्चंस का पैटर्न अप्रोच चेंज हुआ है. क्या कैसे डिस्कस कर रहे हैं अभी आपके साथ. सो पहला बात तो CA इंटर के सिलेबस में आप लोगों के लिए 6 ही पेपर है. सो आप लोग बहुत खुश होते हैं कि सर 6 ही पेपर है, और फिर 6 को पढ़ते पढ़ते आपकी हालत ख़राब हो जाती है. आपको लगता है पता नहीं सर 8 तो लोग कैसे पढ़ते थे, बट लोग 8 भी पढ़ते थे, एक साथ देते थे, क्लियर भी करते थे, और 6 भी पढ़ रहे हैं और क्लियर भी आई एम श्योर करेंगे. सो प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू आर डूइंग ऑल योर 6 पेपर्स प्रिपरेशंस thoroughly and doing judicious, let's say justice to each of the papers. Why am I saying this is, a lot of times what happens is students tend to neglect a lot of your theory papers. Theory mainly 3 पेपर है, law, audit और SM वाला अपना papers, and a lot of times students tend to ignore these theory papers, and eventually इसके वजह से क्या होता है, धीरे धीरे with time जब एग्जाम पास आता जाता है, and then we tend to realize अरे यार ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया, चैलेंजिंग लग रहा है, डिफिकल्ट लगने लग गया. So while you have decided to take up the SM classes and start early, what you should do is, while you're doing my classes, you have to give me 4 hours per week. Okay, that's it. You have to give me about 4 hours per week, where all you have, not even 4 hours, I think about 2.5 hours, 3 hours per week will be even enough. So all you have to do is, हम जो every week अपनी classes कर रहे हैं उसको आपको parallelly revise करना है,
and the entire SM syllabus we are going to be wrapping up in approximately around 1 month time. ठीक है ना, 1.5 months max the entire SM syllabus will get over. So that is how we are going to be approaching the entire syllabus. 3 days a week करके हम अपनी क्लासेस को रन करेंगे एंड हमारा सिलेबस इज अप्रॉक्सीमेटली 15 क्लासेस लाइक आई सेड, सो अराउंड 5 हफ्ता लगने वाला है एंड 1.5 months वी आर डन विद द एसएम सिलेबस. दैट्स हाउ वी गो अबाउट इट नाउ. लेकिन जब आप ये एसएम की क्लासेस कर रहे होंगे तो ऐसा नहीं है कि आप क्लासेस कर रहे हो और फिर आप 3 महीने बाद सोचोगे कि मैं पढ़ूंगा तो फिर या पढ़ूंगी एंड देन इवेंचुअली यू रियलाइज अरे मेरे को तो कुछ याद ही नहीं आ रहा एंड देन इट्स लाइक ब्लैंक पेपर्स एंड देन यू keep scrolling and then you're spending almost double the amount of time. So what you should do is कि आप जब क्लासेस कर रहे हो क्लासेस के साथ में आपको एक पैरेलल रीडिंग जरूर देना चाहिए. दिस इज अ मस्ट. So you must give one parallel reading while you're doing the classes so that आपको conceptual clarity आ जाए. कोई डाउट्स आएंगे तो ऑब्वियसली हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में टेकअप कर सकते हैं पैरेलली, लेकिन ज़्यादा नहीं. एक क्लास जो हम कवर करेंगे, एसएम की क्लासेस बहुत लंबी नहीं होती है, अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे के आसपास रहती है, 10-15 मिनट कम बेसी. लेकिन हम ये जो क्लासेस में 2 घंटे में कवर करेंगे उसको आपको 1-1.25 घंटा घर पे देना है और उसको पूरा रिवाइज कर लेना. दैट इज हाउ 3 क्लास के पीछे अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटा दोगे आप काफी सफिशिएंटली कवर हो जाएगा. लेकिन इसको साथ साथ में एक बार खाली रिवाइज कर लो. तो जो क्लास कर रहे हैं उसको एक बार रिवाइज करते चलो, कॉन्सेप्ट सेट रहेगा अपने माइंड में और फिर बाद में ऑब्वियसली हम जब मॉक्स ले रहे होंगे तो मॉक्स की प्रैक्टिस करेंगे एंड एसएम स्मूथली सेल थ्रू हो जाएगा हमारे लिए. एसएम के पेपर में एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो एक मेजर चेंज क्या आया है कि एसएम का पेपर के अंदर इन द लास्ट फ्यू इयर्स केस बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा करके आने लग गए हैं. नाउ सर व्हाट डू यू मीन बाय केस बेस्ड क्वेश्चंस? केस बेस्ड क्वेश्चंस मीन्स कि आज के दिन में आपको एक केस स्टोरी दे दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर. So you will have a case study, you will have a case story in the entire question, and based upon the case story you will have to answer a following question that follows after the case story. Most students find it difficult. उनको लगता है सर इतना बड़ा सा केस स्टडी वगैरह के बाद में क्वेश्चन होगा, केस स्टडी वगैरह को कैसे अप्रोच करें. कुछ अलग नहीं करना है आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना. तो ये जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चंस भी अपने सिलेबस में आ रहे होंगे, इन सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस के बाद में जो क्वेश्चन होगा मेजॉरिटी केसेस में 90% टाइम्स वो हमेशा एक डायरेक्ट क्वेश्चन होगा. क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन होगा. आपको क्या करना होगा, आपको केस से रिलेट करके ये समझना पड़ेगा कि बुक का कौन सा डायरेक्ट आंसर लिखना है और फिर वो लिखना रहेगा. So let's say for example in our entire syllabus we are going to study about 10, 20, 30, 40 different strategies that we can have in the organization. What are strategies? We are going to come to that. We are going to be discussing that in today's session. But हमारे बिजनेस में हमारे पास 10-20 अलग अलग बहुत सारे अलग अलग स्ट्रैटेजीज है जो हम अपने क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे इन कमिंग सेशंस में. अब आपको एक केस स्टोरी दे दिया जाएगा और आपको ये सेलेक्ट करके चूज करके डिसाइड करना पड़ेगा कि उस स्टोरी में कंडीशंस में कौन सा वाला केस स्ट्रैटेजी हमें अप्लाई करना चाहिए. So that is how in a case based question the tricky part is to select which strategy has to be applied, because once you know the strategy that has to be applied then it becomes a cakewalk, because all you have to do is explain the strategy, a couple of lines relating it to the case study and your answer is almost ready. So answering pattern वगैरह in due course as we keep moving ahead with the chapters we will keep discussing, but I'm just giving you an overview about the subject and the chapter and the idea कि हमारे लिए इस सब्जेक्ट में ना केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और उनको टैकल अप्रोच करते टाइम हमारे लिए कुछ अनोखा नहीं करना है. हमारे लिए लॉट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स आस्क मी सर केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, सर उनके लिए क्या तैयारी करें, सर कहाँ से तैयारी करें, सर उसका अलग से कोई मैथ से करना है, अलग से कोई बुक. कुछ नहीं, आपने पूरा एसएम का मैथ मेरे साथ क्लास में आईसीआई मैथ से कवर करना है. ओके, disclaimer, all our SM classes are going to be ICI MAT based. That is like my USP, that is my unique teaching style. Okay, so we will only and only refer to ICI MAT for our classes. Yes, we are preparing a summary module for you. So we have a summary module that's there for you, that's as per the new syllabus updated, and we've incorporated old questions also जो पुराने सिलेबस में आए हुए थे, adapting it according to the new syllabus. So वो सारा हमने आपके लिए प्रिपेयर किया. लेकिन क्लास में हम सिर्फ ICI मैथ से पढ़ने वाले हैं.
Okay, so all the discussion that we do in our classes will be purely based upon ICMAT based. Now अगर आपने मेरी क्लासेस में एक बार पढ़ लिया, घर में एक बार रिवाइज कर लिया, और लास्ट के 2 महीने में एक बार रिवीजन तो करोगे ही करोगे, और फिर 1.5 दिन में एक बार कर लिया, मतलब कुछ नहीं, बेयर मिनिमम आप मेरे क्लास के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हो ना, बाय द टाइम यू एंटर एग्जामिनेशन हॉल यू वुड हैव स्टडीड द ICMAT 5 टाइम्स. 5 बार पढ़ के आप अच्छा आंसर लिख सकते हो, इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना, और कुछ नहीं करना है, उतना तो कॉन्फिडेंस अपने आप पे रखो. बट द आइडिया इज कि आपको क्लास करनी है और क्लास के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. दैट्स इट, एंड नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज व्हाट यू हैव टू डू. डोंट पुट योर हेड लेट मी डू माय हार्ड वर्क. You do your hard work. Your hard work is only to do the classes and give me the 3 hours per week, and that's it. We are going to sail through with this subject. Okay, obviously sticking to and focusing only on the SM part right now. FM का discussions हम अलग से FM वाले part में कर रहे हैं, that is going on separately. SM के अंदर मेरी teaching style आपको पता है, so I सबसे पहले discuss the subject name. Okay, so just to understand, हमारे सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. ओके, सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट डज द वर्ड स्ट्रैटेजी मीन पहले समझते हैं, एंड देन व्हाट डज द वर्ड मैनेजमेंट मीन ये समझते हैं. चलिए, anyone wants to share us what does the word strategy mean? Sagaf, anything that comes to your mind? What is strategy? Everyone. So strategy आज के ज़माने में हम लोग हमेशा ये वर्ड सुनते रहते हैं, स्ट्रैटेजी 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 बनाते हैं, बट व्हाट एग्जैक्टली इज स्ट्रैटेजी? सो स्ट्रैटेजी इज योर गेम प्लान. स्ट्रैटेजी इज योर गेम प्लान or your roadmap to achieve your business targets. Those business targets we are going to be calling goals and objectives. Those business targets we are going to be calling goals and objectives, and the business strategy will be your game plan to achieve those goals and objectives. तो आपके कुछ टारगेट होंगे और उन टारगेट को कैसे अचीव करें उसके लिए आपके कुछ स्ट्रैटेजीज होंगे. एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल रखते हैं, और ये एग्जाम्पल्स ही याद रखो, क्योंकि यू नो बुक का थ्योरी है और थ्योरी तो हम क्लास में कर रहे हैं, लेकिन उस थ्योरी को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट करोगे तो आपको लाइफ में सॉर्टेड सेट होगा. ओके, सो स्ट्रैटेजी मीन्स प्लानिंग एंड गोल्स. ओके, सो प्लानिंग एंड गोल्स में थोड़ा सा फर्क है. दैट्स व्हाट वी आर मूविंग टुवर्ड्स, कि स्ट्रैटेजी इज योर प्लान टू अचीव द गोल्स. तो strategy is not goals. Strategy is your plan to achieve goals. For example, आप जितने भी स्टूडेंट्स क्लासेस कर रहे हैं, आपका एग्जाम क्लियर करना, CA इंटर इज योर गोल. आई एम श्योर अज्यूमिंग सबका ऑब्जेक्टिव तो वही होगा कि CA इंटर क्लियर करना है ना. अब उसमें ऑब्वियसली कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव होगा कि सर मुझे 60 लाना है इस पेपर में, एग्जाम्शन, और 1 मिनट अभी FMSM दोनों की बात कर रहे हैं. हाँ ठीक है, SM में 60 नहीं ला सकता पगला. सो पेपर में एग्जाम्शन लाना है, और एग्जाम्शन के नीचे तो टारगेट हम लोग करते ही नहीं है, स्कोपिच नहीं है, क्योंकि वो तो मिनिमम है, वो तो आना ही है. क्लासेस लिया है, मेहनत करेंगे तो बेयर मिनिमम है. कुछ लोगों का टारगेट होगा 60 लाना है, कुछ लोगों का टारगेट होगा 70 लाना है, कुछ लोगों का टारगेट होगा हमको सीधा रैंक लाना है, रैंक. तो अलग अलग लोगों का अलग अलग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होगा, ठीक है ना. अब आप कौन से कैटेगरी वाले हैं, क्लास करते करते सोच लीजिएगा. स्माइल कर रहे हैं, सुनना. तो आपने एक टारगेट, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट किया,
क्या टारगेट सेट किया कि मुझे सीए इंटर क्लियर करना है विथ 60 विथ 70 विथ रैंक व्हाटएवर बी योर टारगेट। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप एक रोड मैप बनाते हो, एक गेम प्लान बनाते हो कि लेट्स से सीए इंटर का ओवरऑल का बात करूं तो मैं टारगेट सेट करूंगा कि सर मैं ना सारी क्लासेस को लेट्स से 3 महीने पहले फिनिश करूंगा, और फिर मैं 2 महीने में एक रिवीजन पूरा अच्छे से कर लूंगा, और फिर लास्ट के 1 महीने में वापस एक रिवीजन करूंगा, और फिर 1.5 दिन में एक रिवीजन करूंगा। सर ऐसे मैं 3 रिवीजन करने का स्ट्रैटेजी बना रहा हूं, और फिर उसके बाद मैं एग्जाम के अंदर जाके परफॉर्म करूंगा, और सर 2 महीने वाले रिवीजन के अंदर मॉक टेस्ट वगैरह दूंगा, फिर 1 महीने वाले के अंदर समरीज में वगैरह के थ्रू करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पता नहीं आप लोग समझ रहे थे, सुन रहे थे कि नहीं, पर हम तो आपके लिए स्ट्रैटेजी बना कर दे रहे थे। सो द आइडिया इज यू विल मेक अ स्ट्रैटेजी to achieve your objectives. The objective is to clear CA inter. The strategy is the roadmap, the game plan, the actions that you're going to be taking to achieve your objectives. For example, एक क्रिकेट मैच में, क्रिकेट तो राउंड द ईयर है सर, आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो, उसके बाद कुछ ना कुछ हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, इट कीप्स रोटेटिंग। T20 का वर्ल्ड कप, ODI का वर्ल्ड कप। ओके, सो द आइडिया इज कोई भी क्रिकेट मैच में 2 टीम्स हैं, दोनों टीम जब ग्राउंड पे उतरती है तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है एक ही, क्या? उस गेम को जीतना। सो बोथ द टीम्स एंटर द मैच विद द ऑब्जेक्टिव टू विन द मैच, और दोनों अपना अपना एक स्ट्रैटेजी बना के उतरती है। जो बैटिंग टीम होती है वो अपना स्ट्रैटेजी बनाती है, पिच ऐसा है, इस टीम के बॉलर्स ऐसे हैं, ये डिपार्टमेंट स्ट्रांग है, ये वीक है, इस बॉलर को हमें देख के निकालना है, ये वाले बॉलर को हमें अटैक करना है, एंड दे एंटर विद अ स्ट्रैटेजी। द बॉलिंग टीम एंटर्स विद देयर स्ट्रैटेजी। तो बॉलिंग टीम सोचता है ये वाला बैट्समैन स्ट्रांग है, इसके सामने मेरे को ये वाला बॉलर को लेकर आना है, ये वाला बैट्समैन को हम एकदम भी रन नहीं दे सकता, ये वाला बैट्समैन आएगा तो हम ये फील्ड सेट करेगा, इसके साथ हम ये इस तरह से फील्ड सेट करेगा। सो बोथ द बैटिंग टीम एंड द बॉलिंग टीम एंटर विद अ स्ट्रैटेजी। नाउ द बैटिंग टीम, द बैट्समैन का खुद का स्ट्रैटेजी चल रहा होता है, ये वाला बॉलर आएगा, ये ऐसे बॉल करेगा, मैं ऐसे खेलेगा, और उसके बाद हम इसको ऐसे मार, ऐसे ऐसे। सो बॉलिंग टीम अपना स्ट्रैटेजी के साथ उतरेगी, बैटिंग टीम अपना स्ट्रैटेजी के साथ उतरेगी, एंड दैट्स हाउ यू हैव अ स्ट्रैटेजी टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो पहला बात तो ये समझिए क्या कि ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजी, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में दोनों में फर्क होता है। आई डोंट नो इफ यू पीपल, अभी उसमें नहीं जा रहा हूं, वो आएगा मेरे नेक्स्ट क्लास तक ही आ जाएगा इस डिस्कशंस में, इसी चैप्टर में है, अपने फर्स्ट चैप्टर में ही। But goals and objectives are words that in our syllabus will be used interchangeably. Interchangeably यानी ICI ने डिस्क्रिमिनेट मार दिया, सर हम इन दोनों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। दो टेक्निकली दोनों में एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, लेकिन हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, हमारे लिए दोनों सेम टू सेम है। तो कभी कभी मैं वर्ड गोल बोलता हूँ, कभी कभी मैं वर्ड ऑब्जेक्टिव बोलता हूँ, दोनों सेम टू सेम है एज पर ICI। ओके, तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजी में फर्क है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर द टारगेट्स एंड स्ट्रैटेजी इज योर प्लान टू अचीव दोस टारगेट्स। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अभी तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट का नाम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, अभी तक तो हमने कुछ पढ़ाना शुरू ही नहीं किया, हम तो बस चिट चैट कर रहे हैं आपके साथ। ओके, स्ट्रैटेजी इज योर गेम प्लान, इज योर मेथड बाय विच यू गोना अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर द ends that you want to achieve. Strategy is your plans and means and ways of achieving those ends. ठीक है ना? Next comes the book का नाम में the word management. बुक का नाम strategic management है ना? Strategy word समझा, management word समझते हैं। So what does the word management mean? Anyone? Go ahead and tell me. What does the word management mean? मतलब हम लोग ये वर्ड तो कई बार सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। मैनेजमेंट स्कूल में भी सुनते थे, स्कूल में भी
कॉमर्स वालों के लिए तो सब्जेक्ट था BO BM कॉमर्स. इनफैक्ट जब आप SMA से पढ़ना शुरू करोगे यू विल रियलाइज अ लॉट ऑफ पार्ट यू विल फील अरे सर ये तो एकदम वैसा सही है जैसा हम स्कूल में पढ़ते थे ना वो BO BM कॉमर्स वाला सब्जेक्ट, व्हाटएवर नेम यू बॉट इट. सो सिमिलर लगेगा बट ऑब्वियसली काफ़ी एडवांस्ड होगा. ये स्कूल लेवल नहीं है, प्रोफेशनल एग्जाम्स है. सो वो BO BM कॉमर्स की दुनिया के ज़माने से आप मैनेजमेंट वर्ड तो सीखते आ रहे हैं. सो व्हाट डज द वर्ड मैनेजमेंट मीन? एनीवन टेल मी. हाँ सगाफ. मैनेजमेंट. सो अपने बुक में टेक्निकली इसका एक डेफिनेशन भी दिया हुआ है. मैनेजमेंट का मतलब होता है कोई भी चीज को मैनेज करना. सर ये तो मैनेजमेंट का मतलब होता है मैनेज करना. वाह सर. मैनेजमेंट बचपन से जब हमने सीखा था तो हम कहते थे मैनेजमेंट वाज अबाउट 5 थिंग्स. व्हाट वाज मैनेजमेंट? इट वाज अबाउट 5 थिंग्स. तो क्या 5 थिंग्स याद आ रहा है क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. याद आ रहा होगा. Planning, organizing, staffing, directing, controlling. This was management. So in simple language, we can say management is about making a plan. Management is about implementing the plan and then controlling to see if the plan is working properly. And if there are deviations, we take corrective actions. Management is about 3 things: making a plan, implementing the plan, and then controlling to see if the plan is working properly, and if there are deviations we take corrective actions. Management, strategy, management, strategy, management, strategy, management. What is strategic management? तो बोला सर स्ट्रैटेजी तो प्लान था. Strategic management is about making a strategy, implementing the strategy, and then controlling to see if the strategy is working properly. And if there are deviations, we take corrective actions. Strategic management. Strategy को बनाना, strategy को implement करना, and then controlling to see if the strategy is working properly. And if there are deviations, we take corrective actions. This is strategic management. समझ में आ रहा है क्या? देखो आप रियलाइज नहीं करोगे, मैं आधा से ज्यादा फर्स्ट चैप्टर खत्म कर दूंगा डिस्कस करते करते. सर क्या बोल रहे सर, अभी तक तो आप चिट चैट कर रहे थे. और क्या, हम टाइम वेस्ट नहीं करते, चिट चैट के अंदर ही 4 पन्ना पढ़ा देते हैं. ये बाबू भाई का स्टाइल है. सो क्विकली वी ऑलरेडी डिस्कस 3 वर्ड्स विथ यू. सर मतलब रिवाइज कर रहे हैं तभी तो. वी ऑलरेडी डिस्कस 3 वर्ड्स विथ यू: स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजी क्या है? Strategy is your game plan, roadmap. Management is about making a plan, implementing the plan, and controlling to see if the plan is working properly, and if there are deviations, we take corrective actions. Strategic management is about making a strategy, implementing a strategy, and then controlling a strategy to ensure that it is working properly, and if there are changes, we make a revised strategy. सुनना, पहले सिर्फ स्ट्रैटेजी एज अ कॉन्सेप्ट होता था, फिर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एज अ कॉन्सेप्ट उभर कर आया. ये क्यों उभर कर आया? सुनो. तो बोला सर इन टुडेज वर्ल्ड द entire world has become very dynamic. In today's times the world has become very dynamic. Dynamic मतलब सर changing, constantly changing, लगातार बदलता रहता है. So in this changing environment, I cannot imagine that I make one strategy and sit with that strategy forever. मतलब ये सोच ही नहीं सकता कि मैं एक स्ट्रैटेजी बना के बैठा रहूंगा फॉरएवर और मेरे लिए वो स्ट्रैटेजी काम करता रहेगा. नॉट पॉसिबल इन टुडेज टाइम्स. व्हाई सर? बिकॉज इन टुडेज टाइम्स environment has become so dynamic, sir.
सर इन्वायरमेंट हैज बिकम डायनामिक मतलब सर आज के दिन में कॉम्पिटिटर्स कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर रहा है, इंटरनेशनल इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस बदल रहे हैं, देयर इज सो मच हैपनिंग इन द मार्केट दैट आई कैन नॉट जस्ट मेक अ स्ट्रैटेजी एंड सिट विद इट फॉर एवर. तो सर क्या करना पड़ेगा? I have to constantly keep revising my strategy according to the changing environment. This is why strategy is not just enough. We need to do strategic management. So, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हम ये बता रहे थे कि आज के दिन में वाई इट हैज बिकम इम्पोर्टेंट, बिकॉज इन्वायरमेंट डायनामिक है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है, वी कैन नॉट कंटिन्यू विद द सेम स्ट्रैटेजी. एज द इन्वायरमेंट चेंजेस वी नीड टू कीप रिवाइजिंग द स्ट्रैटेजी. एग्जाम्पल देते हैं. सर मैंने ना एक स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ना शुरू किया. क्या चीज़ के लिए पढ़े थे सर हम? सी एंटर. तो सर हमने सी एंटर के लिए पढ़ना शुरू किया एंड हम पढ़ रहे थे, हमने स्ट्रैटेजी बनाया, इतना तारीख तक ये क्लासेस खत्म हो जाएगी, इतने तारीख तक ये क्लासेस हो जाएगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा, सॉरी, एंड अकॉर्डिंगली मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा. ओके हमने पढ़ना शुरू किया, फिर क्या होता है अचानक से सर ना बीच में दोनों टर्म वालों के लिए, हाँ मई एंड नवंबर वालों के लिए, तो मई वालों के लिए बीच में कभी क्रिसमस आता है, न्यू ईयर आता है, उनका फेवरेट फेब्रुअरी आता है, और इवेंचुअली इन डिस्ट्रैक्शंस के बीच में कुछ दिन वेस्ट हो जाता है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस का आफ्टर इफेक्ट, समझ रहे ना? तो इवेंचुअली यू विल रियलाइज कि सर मैंने सोचा था इतना तारीख तक खत्म हो जाएगा मेरा क्लासेस, अभी तो सर इतना बचा रह गया. नवंबर वालों के लिए बीच में कई सारे हॉलीडेज वगैरह आ जाते हैं, त्योहार फेस्टिवल्स आ जाता है, एंड यू इवेंचुअली रियलाइज दैट यू आर faltering behind the schedule that you had set. So what do you do? सर अब जो टाइम निकल गया सर निकल गया, अब उसका कोई फायदा नहीं है. अब हम क्या करेंगे सर? वी मेक अ रिवाइज स्ट्रेटेजी. हाउ डू वी मेक अ रिवाइज स्ट्रेटेजी? कि सर यहां से वी मेक अ रिवाइज स्ट्रेटेजी कि सर यहां से अब मेरे पास इतना टाइम बचा है और इतना सिलेबस खत्म करना है, तो ये करेंगे ऐसे ऐसे करेंगे एंड इतना तक खत्म कर लेंगे. समझ में आ रहा है क्या? Okay, so ideally हमारे लिए ना स्ट्रैटेजी भले ही हम एक बना के चलेंगे, लेकिन इन्वायरमेंट में बहुत सारे कारणों के वजह से डेविएशंस आएगा, और फिर हम क्या करेंगे? एक रिवाइज स्ट्रैटेजी बनाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि हमारा टारगेट ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए. ऑब्जेक्टिव क्या था? सी एंटर. कई बार उसका घर में रिलेटिव्स आ जाएंगे, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है सर, आज गेस्ट आए हुए हैं घर पे, तो क्या करना है? रिवाइज स्ट्रैटेजी करना है, अगले दिन एक्स्ट्रा पढ़ना है, आगे पीछे कवर अप करना है, ताकि हम अपने टारगेट पे बने रहे. फॉर एग्जाम्पल जब क्रिकेट मैच चलता है, एग्जाम्पल्स सेम एग्जाम्पल्स रख रहा हूं, स्ट्रैटेजी को लेकर समझाया, वही स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लेकर समझा रहा हूं. तो जब एक क्रिकेट मैच चलता है, बैटिंग टीम एक स्ट्रैटेजी के साथ उतरी थी, हम इसको अटैक करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, अचानक से 3-4 विकेट गिर गया. अब क्या करें? थोड़ी ना ये है कि जो सोचा था वैसे ही चलते थे, नहीं सर, फिर तो 95 ऑल आउट हो जाएंगे. तो सर हमें क्या करना चाहिए? हमें एक रिवाइज स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए. हाउ डू वी मेक अ रिवाइज स्ट्रैटेजी? अब सर इतने बॉल्स बचे हैं, इतना विकेट से, इतना ओवर्स थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं, इतना देख कर निकालते हैं, फिर इतना ओवर्स के अंदर लास्ट के अंदर इस तरह अटैक करेंगे और इतना टारगेट बना के रिवाइज टारगेट इतना अचीव करने का, स्कोर बनाने का कोशिश करते हैं. बॉलिंग टीम अपना स्ट्रैटेजी के साथ उतरा था आउट करने के लिए, तो बॉलिंग टीम ने सोचा था विकेट्स को ऐसे ऐसे गिरा देंगे, लेकिन अचानक से बैट्समैन आके बहुत अटैक कर दिया, बहुत सारे 6 वगैरह मार दिया. अब क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी ना हमने सोचा था हम ऐसा बॉल करेंगे, वो ऐसे आउट डाउन द पिच आएगा, ऐसे आउट कर देंगे, वो एक छक्का मार दिया, दूसरा छक्का मार दिया, तीसरा छक्का मार दिया, नहीं हम तो वैसे ही करेगा, तो और एक ले.
तो समझ रहे हैं ना? तो आइडियली when you realize that the strategy is not working or for some reason you have lost track, so you make a revised strategy, change your line, change your bowler, change your strategy, come up with something else, plan B. This is strategic management, where I make a strategy and with that strategy I enter the markets, but with the changing times and with the changing environment I keep revising my strategy. Strategic management. So strategic management is about making a strategy, implementing the strategy, and then constantly monitoring if the strategy is working properly towards your objectives. If not, you keep coming up with your revised strategies. This is strategic management. देखो समझ में आ रहा है क्या? Strategy management and strategic management, the first three words that we have discussed for about half an hour. Are we clear with this? Tell me. ओके और एक चीज ये समझो कि आपके एसएम के सिलेबस में फ्रॉम 2023 टू 2024 जो चेंजेस आया, चैप्टर्स 8 के 5 हो गए। उससे भी ज्यादा क्या हुआ, बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स के कंटेंट को शिफ्ट कर करके मर्ज किया गया। बहुत सारे अलग अलग चैप्टर्स के कंटेंट को शिफ्ट कर करके मर्ज किया गया। सो योर वन चैप्टर मे हैव कंटेंट टेकन फ्रॉम 3 डिफरेंट चैप्टर्स, एंड इन एडिशन टू दैट इट मे हैव 3, 4 or 5, 6 न्यू पेजेस ऑफ कंटेंट। तो अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ सिलेबस नया होगा, अराउंड मैक्सिमम 25% कंटेंट नया होगा, बाकी कंटेंट सारा रीशफल्ड है और काफी अच्छा खासा कंटेंट रीशफल हुआ है। तो विच इज वाई 2023 to 2024 it's been a drastic change in the syllabus for SM, not in terms of only additions but in terms of content restructurings, which is why अगर कोई 2023 का बुक या क्लासेस देखकर क्लास करने का कोशिश करेगा तो it's not practically possible. It becomes too difficult for you to even manage the pages because ICI MAT based है सारा content. And I think ICI MAT is best for you to study for, because जो एग्जामिनर होता है उसके पास ICI MAT का ही कंटेंट रहता है। तो अगर आपने यही कंटेंट ओरिजिनल पढ़ा है, 3-4 बार पढ़ा है और उसके बाद लिख कर आओगे तो ज्यादा एप्ट कंटेंट लिखोगे, ज्यादा एप्ट कंटेंट लिखोगे तो ऑटोमेटिकली बेटर स्कोर कर पाओगे। आई डोंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आई जस्ट ब्रिंग आउट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्रॉम द ऑर्डिनरी। ठीक है, दैट्स द टैगलाइन। बट द आइडिया इज आप थोड़ा स्मार्टली पढ़ोगे तो और कुछ पढ़ने का दरकार ही नहीं। ICI MAT इज मोर देन इनफ, बस 3-4 बार रिवाइज किया, हो गया, खत्म। ओके, हमारे SM की क्लासेस में इसीलिए अपने स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ ICI MAT रेफर कर रहे होंगे। ओके, अब इस ICI MAT के अंदर आपके पास जो बुक होगी वो थोड़ी ब्लैक एंड व्हाइट होगी, हमारी दुनिया थोड़ी ज़्यादा रंगीन है क्योंकि सॉफ्ट कॉपी है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया अबाउट द पेपर, SM 50 मार्क्स है, FMSM 100 मार्क्स में से। अब इस 50 मार्क्स में से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 35 मार्क्स हैं एंड MCQ आएगा 15 मार्क। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी, सर तो फिर MCQ के लिए अलग से कुछ प्रैक्टिस करना होगा, कहां से प्रैक्टिस करें सर, क्या प्रैक्टिस करें? कुछ नहीं करना है, ट्रस्ट मी। अगर आपने ICI MAT 4 बार पढ़ा है तो और कुछ करने का ही दरकार नहीं है। फिर भी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम आपको दे देंगे प्रैक्टिस करने के लिए, बट there is no extra effort that you need to take. All you need to do is read the mat properly a few times. That's it, and that's what our focus is going to be upon. Okay,
हमारे एसएम के सिलेबस में पांच चैप्टर है। अभी तक तो बुक का नाम समझा था, अब कंटेंट्स पे आते हैं। तो हमारे एसएम के सिलेबस में पांच चैप्टर है। पांच चैप्टर्स में सबसे पहला चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर हम बेसिक डेफिनेशन सीखेंगे। बेसिक डेफिनेशन यानी सर स्ट्रेटेजी क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। इसके आगे इसी से रिलेटेड हम डिस्कशन अभी करेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तो सीखेंगे कि कुछ विजन बोल के होता है, मिशन बोल कर होता है, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वैल्यूज बोल कर होता है। ये सब वर्ड्स मतलब का मतलब सीखेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में कुछ मिसेलेनियस टॉपिक्स एंड द चैप्टर इज ओवर। तो यही है अपने लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, फर्स्ट चैप्टर। मैंने आपको बताया था कि अगर सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनता है, तो अब अगर मुझे स्ट्रैटेजी बनानी है, इफ आई वांट टू मेक अ स्ट्रैटेजी, तो ऐसा थोड़ी ना आई गेट अ वन फाइन डे एंड से चलो कुछ तूफानी करते हैं, चलो आज स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा। सो स्ट्रैटेजी बनाने के पहले सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट को समझना होता है। इन्वायरमेंट यानी कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, हमें पूरे इन्वायरमेंट को समझना होता है और उसमें क्या कैसे चल रहा है ये समझना होता है, और उसके हिसाब से फिर हम स्ट्रैटेजी को बनाते हैं। ओके, तो ये चैप्टर्स 2 and 3 फोकस अपॉन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट। Chapter 4 is about strategic choices, which is about strategy बनाना, अलग अलग strategic alternatives को evaluate करके strategy बनाना। And then 5 is about implementation and evaluation. So this is how your 5 chapters of SM are structured, और logically एक flow में है कि सर पहले वर्ड्स डेफिनेशंस वगैरह सीखा, फिर इन्वायरमेंट को एनालाइज करना सीखा, इंटरनल एक्सटर्नल, फिर स्ट्रैटेजी बनाना सीखा, फिर स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया, और फिर इवैल्यूएट कंट्रोल करके चेक कर लिया स्ट्रैटेजी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन्वायरमेंट को समझा, स्ट्रैटेजी बनाया, स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया, एंड देन कंट्रोल करके चेक कर लिया स्ट्रैटेजी सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिस इज हाउ एसएम का सिलेबस इज स्ट्रक्चर्ड। नाउ to give you an overview of chapter 1, हम चैप्टर 1 में क्या क्या चीज सीखने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम सीखेंगे प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, three types of strategies, advantages and limitations, vision, mission, goals and objectives and values, and lastly एक छोटा सा डिस्कशन है अबाउट स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स वाला डिस्कशन इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज मेन पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स का डिस्कशन आगे इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन में है, बट फिर भी एक छोटा सा डिस्कशन आएगा अपने लिए। दिस इज हाउ द चैप्टर इज बेस्ड ऑफ।
जिसमें से फर्स्ट पार्ट सबसे पहले आपके साथ डिस्कस कर लिया मैंने जब आपको एक ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर एंड द सिलेबस दे रहा था, व्हेन आई वाज जस्ट डिस्कसिंग विद यू अबाउट यू नो द सब्जेक्ट नेम, वी वर फिनिशिंग ऑफ द डेफिनेशंस, फर्स्ट 3 वर्ड्स, जिसके ऊपर अपने 5-6 पन्ना है अपने बुक के अंदर. ओके, थिंक एंड टेल मी, strategy is made for the past or for the future? Think, strategy is made for the past or for the future? सर अगर लॉजिकली सोचें, so obviously strategy is made for the past, future. Okay, स्ट्रैटेजी इज ऑब्वियसली मेड फॉर द फ्यूचर. पास्ट के लिए थोड़ी ना स्ट्रैटेजी बनाते हैं सर, पास्ट इज डेड एंड स्टैटिक, हो चुका वो तो ऑलरेडी. फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी बनाया जा रहा है. तो फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी बनाना, एंड फ्यूचर इज सर्टेन या अनसर्टेन? सर फ्यूचर इज अनसर्टेन, किसी को नहीं पता फ्यूचर में कब क्या कैसे होने वाला है. तो फ्यूचर क्योंकि अनसर्टेन होता है और फ्यूचर के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो स्ट्रैटेजी बनाते टाइम हम पहले से एंटीसिपेट करते हैं. तो स्ट्रैटेजी बनाते टाइम हम पहले से एंटीसिपेट करते हैं और फिर उस स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं. स्ट्रैटेजी हैज टू बी प्रोएक्टिव, वेयर वी एंटीसिपेट एंड मेक अ स्ट्रैटेजी इन एडवांस. पहले से एंटीसिपेट करके स्ट्रैटेजी बनाना, दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव. प्रोएक्टिव, पहले से एंटीसिपेट करके स्ट्रैटेजी बनाना. ठीक है ना. दूसरा, think and tell me, if I make a strategy and enter the markets, can I continue working with that same strategy irrespective of what happens in the environment? Obviously not. I have to adapt, adjust and change my strategy according to the changing environment. I have to adapt, adjust and change my strategy according to the changing environment. So this is reactive. Strategy cannot be only proactive and it cannot be only reactive. ये एग्जाम में वेरी पॉपुलर क्वेश्चन है. ये वाला पार्ट इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन. ओके, इस स्ट्रैटेजी प्रोएक्टिव और रिएक्टिव अलग अलग तरीके से पास में ये क्वेश्चन आया हुआ है. स्ट्रैटेजी इज प्रोएक्टिव, ट्रू और फॉल्स. स्ट्रैटेजी इज ओनली रिएक्टिव, ट्रू और फॉल्स. स्ट्रैटेजी शुड बी प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव. कमेंट अलग अलग तरीके से आया हुआ है. सिंपल भाषा में, स्ट्रैटेजी खाली प्रोएक्टिव भी नहीं हो सकता, खाली रिएक्टिव भी नहीं हो सकता. इट हैज टू बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. इट हैज टू बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. पार्टली 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 पार्टली, हाँ पता नहीं कुछ लोग कुछ कुछ सुनते रहते. पार्टली पार्टली. तो स्ट्रैटेजी हैज टू बी पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. इट कैन नॉट बी ओनली प्रोएक्टिव वेयर वी इग्नोर व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट की बस हम तो यही लेके चलेगा. एंड इट कैन नॉट बी ओनली रिएक्टिव बिकॉज इफ यू आर रिएक्टिंग देन यू आर नॉट एंटीसिपेटिंग इन एडवांस, एंड इफ यू आर नॉट एंटीसिपेटिंग इन एडवांस यू विल इवेंचुअली नॉट बी एबल टू गेन एन एडवांटेज इन द मार्केट. बिकॉज हम स्ट्रैटेजी बनाते ही हैं ताकि पहले से एंटीसिपेट करके एडवांटेज ले सके. आज अगर मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, आज अगर मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, तो मैं पहले से एंटीसिपेट करके स्टेप्स ले लूंगा. तो क्या होगा, जब मार्केट गिरेगा तो मैं उसका फायदा उठा सकूंगा. दिस इज प्रोएक्टिव. लेकिन अगर मैं प्रोएक्टिव नहीं हूं तो खाली गिर गया, अब तो गिर गया, अब क्या करें, रिएक्टिव. So strategy cannot be only proactive, it cannot be only reactive. Hence strategy has to be partly मतलब partly proactive and partly reactive. देखिए पहला दो कंटेंट समझ में आ रहा है क्या अपने को? स्ट्रैटेजी क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, एंड प्रोएक्टिव रिएक्टिव. ये पूरा पार्ट क्लियर है क्या अपने लोगों को? चेक. ओके, क्योंकि अब थोड़ा सा कंटेंट बुक में चलते हैं. काफ़ी देर से अपने डिस्कशंस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो थोड़ा सा बुक में चलते हैं. 15-20 मिनट थोड़ा सा बुक से रीड करते हैं कंटेंट जितना हमने डिस्कस किया. वो लाइंस
रीड करके समझ लेते हैं, मार्किंग्स कर लेते हैं। सो मेरी क्लासेस ना दो अलग अलग मोड में रन करती है। फ्यू इंस्ट्रक्शंस विल कीप कमिंग इन द फर्स्ट सेशंस। हाँ, मेरी क्लासेस दो अलग अलग मोड में चलती है। जैसे आपके घर का गुड नाइट होता है ना, जो एक्टिव मोड और डबल एक्टिव मोड में चलता है, वैसे ही मेरी क्लासेस का सबसे पहला होता है डिस्कशन मोड, जिसमें अभी तक हम थे, जब हम सिर्फ डिस्कस करते हैं, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, क्या क्वेश्चंस, कैसा क्वेश्चंस, क्या टॉपिक, जितने कंटेंट मेरे माइंड में आता है हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। फिर आता है एग्जाम मोड, एक है डिस्कशन मोड, एक है एग्जाम मोड। फिर आता है एग्जाम मोड। एग्जाम मोड में हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड रीड एंड राइट करते हैं। मतलब जितना एग्जाम के लिए हमारे लिए रेलेवेंट है उतना ही कंटेंट रीड करेंगे और जहां दरकार पड़ेगा राइट करेंगे। सर राइट भी करना पड़ेगा? हाँ जी, राइट भी करना पड़ेगा। थ्योरी है, लेकिन क्या होता है कई बार बुक का कंटेंट उतना अच्छा नहीं होता है, मुझे लगता है कि कुछ कुछ लिखवा देना चाहिए, तो आई विल मेक यू स्क्रिबल अ फ्यू लाइंस। कई सारी जगहों पे बुक में लिखवाएंगे, कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा लॉन्गर कंटेंट होगा तो आपको कॉपी में अलग से लिखने बोलेंगे, अदरवाइज जनरली विल राइट इन द बुक्स ओनली, बट देयर विल बी अ फ्यू डिक्टेशंस आल्सो, सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, तो यहां तक अपना डिस्कशन मोड था। यहां से अब हम चलते हैं अपने रीड एंड राइट मोड की तरफ। आ जाओ। आगे बढ़ने के पहले यहाँ तक का कंटेंट जितना स्क्रीन पे है एक बार आपके लिए स्क्रीन पे छोड़ दे रहा हूँ। इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू पीपल वांट टू कॉपी देन यू मे, अदरवाइज मतलब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मतलब इन जनरल जो कंटेंट लिख रहा हूँ वो स्क्रीन पे 1 मिनट दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कॉपी करना हो तो आप कर सकते हो, एंड देन वी मूव अहेड। Okay. We now move ahead into the book and discuss and read a little bit what we have already discussed. सर वाह सर, कितना कलरफुल, अच्छा लग रहा है ना? आपका भी बुक ऐसे ही ओरिजिनल कंटेंट इज कलरफुल, लेकिन ऑब्वियसली प्रिंट आउट ब्लैक एंड वाइट है। सबसे पहले बुक अपने लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब समझाएगा और उसके लिए सबसे पहले एक एक करके वर्ड मैनेजमेंट समझाएगा। To understand the management, strategic management, we need to understand the term management. The term management is used in 2 senses. तो management word का मतलब सीख रहे हैं अब अपने। It is used with reference to a key group in an organization in charge of its affairs. Management एक level in the organization होता है, top management, middle management, lower management, management. Okay. लेकिन अपने लिए वो रेलेवेंट नहीं, अपने लिए नीचे वाला ज़्यादा रेलेवेंट है। द टर्म मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड विद रेफरेंस टू अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मार्क करते चला। तो मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ फंक्शंस, एक सेट ऑफ फंक्शंस कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या फंक्शंस समझ में आ रहा है क्या? बचपन वाला, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, दिस इज मैनेजमेंट। Okay. Management is an influence process to make things happen, to induce and direct events and people in a particular manner. देखो, दो लाइन लिखना मैनेजमेंट के बारे में, लिखवा रहा है आपको। Management is the overall process
Management is the overall process of developing a plan, comma, implementing the plan, comma, implementing the plan, and controlling to see if the plan is working properly. Developing a plan, implementing the plan, and then controlling to see if the plan is working properly. To see if the plan is working properly. And if there are deviations, we take corrective actions. And if there are deviations, we take corrective actions. Okay. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी. पहले मैनेजमेंट वर्ड समझा, अब आता है स्ट्रैटेजी क्या होता है. In the context of business, the application of the term strategy relates to the ways the business decides to respond to the dynamic external forces. तो मार्केट में एक्सटर्नल फोर्सेस जो काम कर रहे हैं, इन्वायरमेंट में जो फोर्सेस काम कर रहे हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें अफेक्ट कर रहे हैं, उनको हम कैसे टैकल करेंगे, अप्रोच करेंगे, हैंडल करेंगे, इसके लिए हम एक प्लान बनाते हैं. दैट्स गोना बी द स्ट्रैटेजी. Strategy seeks to relate the goals of the organization to the means of achieving them. टारगेट को अचीव करने वाला प्लान is called strategy. Strategy is the game plan that the management of a business uses to take market positions, conduct its operations, attract customers, and achieve the objectives. The game plan by which we achieve our objectives is called strategy. Simple one-line answer समझो. Goals, objectives are targets. The game plan by which we try to achieve our goals and objectives is going to be called strategy. Okay. We may define the term strategy as a long-range blueprint of the organization's desired image, what it wants to be, what it wants to do, and where it wants to go. Check. Okay. What is a strategy? Clear होना चाहिए. Strategy is consciously considered and flexibly designed. एक एक वर्ड समझो. Consciously considered मतलब तुक्का में स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, सोच समझ के बनाते हैं. Consciously considered, सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है, ऐसा नहीं कि तुक्का में बनाया हुआ प्लान है. फ्लेक्सिबली डिजाइंड, स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि उसको तोड़ मोड़ के अडेप्ट कर सके अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. So it's consciously considered, flexibly designed to mobilize resources and to direct human behavior, to perceive and utilize opportunities, and to meet challenges and threats for corporate survival and success. तो बोला स्ट्रैटेजी इज कॉन्शियसली कंसिडर्ड एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन टू मोबिलाइज द रिसोर्सेज को यूटिलाइज मोबिलाइज करना है, डायरेक्ट द ह्यूमन एफर्ट एंड बिहेवियर, टू परसीव पहले से एंटिसिपेट करना अपॉर्चुनिटीज को, और आने वाले चैलेंजेस एंड थ्रेट से लड़ना, सर्वाइव कराना बिजनेस को. दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू विद अ स्ट्रैटेजी.
प्रैक्टिकली अब बिजनेस में हम स्ट्रैटेजी बना के क्या करते हैं, या तो आने वाले प्रॉब्लम से लड़ने का कोशिश करते हैं या आने वाले अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने का कोशिश करते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द वर्ड कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस. श्योर सुना होगा, हर किसी ने सुना होता है बीओ बीएम कॉमर्स की क्लासेस में. तो स्वॉट अगर नहीं भी सुना तो टेंशन नहीं लेने का, आएगा आगे अपने सिलेबस में. लेकिन हम स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स मिलके स्वॉट बनता है. उसमें से अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स मार्केट से आते हैं. तो मार्केट से जो थ्रेट आ रहा होगा उससे हम लड़ने का कोशिश करते हैं थ्रू अ स्ट्रेटेजी. मार्केट से जो अपॉर्चुनिटीज आ रहा होगा उसको हम कैप्चर करने का कोशिश करते हैं थ्रू अ स्ट्रेटेजी. Objectives and goals are essential, but they do not fulfill the need alone. खाली goals and objective is not sufficient. लेकिन strategy is no substitute for sound, alert and responsible management. हमारे क्लास का एक कॉन्सेप्ट होता है SQ. So what is SQ? तो कोई भी वो टॉपिक जिससे मुझे लगता है कि एक अलग क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है और पढ़ते टाइम आपसे मिस हो सकता है, तो हम उसके बगल में SQ लिखवा देते हैं. इससे क्या होता है, पढ़ते टाइम हमेशा क्लिक करता है, अच्छा यहाँ से एक अलग क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा इसको अलग से पढ़ने का है, ध्यान देने का है. दैट्स द ऑब्जेक्टिव. SQ मतलब सेपरेट क्वेश्चन. तो यहां से इस एक लाइन से एक अलग क्वेश्चन बन सकता है. एक मिनट के लिए सोचो. तो आपको क्वेश्चन आएगा, स्ट्रैटेजी इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, एक्सप्लेन. एक्सप्लेन. थिंक. ये बोलना चाह रहा है लाइन अपने को कि अगर हमने बिजनेस में स्ट्रैटेजी बना दिया तो ऐसा नहीं है कि हमने बिजनेस में स्ट्रैटेजी बना दी अब कुछ नहीं करना है, घर में बैठे रहेंगे हाथ पांव फोल्ड करके और काम अपने आप होता रहेगा, लाइफ में अपने आप प्रॉफिट्स आते रहेंगे, बिजनेस चलता रहेगा. नहीं, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट. ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी बना दिया तो मैनेजमेंट करने का दरकार नहीं है. हाँ, स्ट्रैटेजी बनाने से मैनेजमेंट को हेल्प होगा. स्ट्रैटेजी विल हेल्प द मैनेजमेंट, बट स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मैनेजमेंट. समझ में आ रहा है क्या? ओके. नेक्स्ट, ये भी एक SQ है अपने लिए. See, I have been teaching SM for almost more than a decade. You understand? So obviously मैंने हर SM के बुक को बदलते हुए देखा है और उन बदलते हुए बुक्स में सवालों को, क्वेश्चंस को आते हुए भी देखा है. So that experience lets me know where a question is possible and which are the areas where we need to put a little extra effort. So that's what we will leverage that experience and use that in our classes. ठीक है. तो कहीं ना कहीं ये सब लाइन से जहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं, हो सकता है आए हुए हैं या क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम कवर कर रहे होंगे. बी रेस्ट एश्योर्ड, हर वो जगह जहाँ से एक प्रॉपर क्वेश्चन अपने को लगता है डिस्क्रिप्टिव बन सकता है, वो सब अपने क्लास में डिस्कस करते हुए चल रहे होंगे. बन सकता है, चाहे आया हो या नहीं आया हो तो रेलेवेंट ही नहीं है. स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड ऑप्टिमल. मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? बोला ये परफेक्ट स्ट्रैटेजी बोल के कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि चाहे कितना ही अच्छा स्ट्रैटेजी हो, इन टाइम मार्केट में कुछ नया आ जाएगा, उससे बेहतर आ जाएगा और वो स्ट्रैटेजी आउटडेटेड हो जाएगा. सो इवन द बेस्ट स्ट्रैटेजी विल ओनली बी बेस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर विच इट विल नॉट बी रेलेवेंट एनीमोर. तो कितना ही अच्छा स्ट्रैटेजी हो, there is no strategy that is perfect, flawless and optimal. Why? Because चाहे कितना ही अच्छा strategy हो, eventually there will be another strategy that will come in the market and that will beat this strategy and become better than this strategy. So अच्छा से अच्छा strategy
will fade out in the market. Strategy can never be perfect, flawless and optimal. Okay. In large organizations, strategies are formulated at 3 levels. कंपनी में कितना लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है पता है? इन जनरल अगर लाइफ में सीखा है याद आएगा, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, बचपन से सीखा है सर. टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट पूरा कंपनी एज अ होल के लिए ओवरऑल स्ट्रेटजीज बनाता है. टॉप मैनेजमेंट पूरा कंपनी एज अ होल के लिए ओवरऑल स्ट्रेटजीज बनाता है. मिडिल मैनेजमेंट, ओके, मिडिल मैनेजमेंट उसी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने का प्लान्स बनाता है. टॉप मैनेजमेंट ओवरऑल बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाता है. मिडिल मैनेजमेंट उस ओवरऑल स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने का प्लान्स बनाता है. एंड लोअर मैनेजमेंट डे टू डे ऑपरेशंस एंड एक्शंस को ओवरसी करके इंश्योर करता है कि वो काम सही सही हो रहा है कि नहीं हो रहा. डे टू डे ऑपरेशंस को ओवरसी करके इंश्योर करता है कि काम सही सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है और वो तीनों लेवल पे एक एक स्ट्रैटेजी बनता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, डिविजनल स्ट्रैटेजी एंड फंक्शनल स्ट्रैटेजी. तो 3 ही अलग अलग लेवल्स पे स्ट्रैटेजीज बनता है. अब देखो बुक अपने को साफ साफ बोलेगा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज मेड बाय टॉप मैनेजर्स. ये प्लान्स फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ वगैरह होगा, इंटीग्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर्स एंड टेकओवर्स, R&D प्रोजेक्ट्स एंड सो ऑन. तो एज अ कंपनी एज अ होल हमें कोई नए लाइन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, पुराने लाइन में अपने को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और फर्दर या नहीं करना चाहिए, कुछ मर्जर एक्विजिशंस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब डिसीजंस टॉप मैनेजमेंट ले रहा होता है. These corporate wide strategies are operationalized by divisional and functional strategies. उसके नीचे डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रेटजीज आते हैं. देखो अभी क्लियर विद द डिस्कशंस दस फार. व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रेटजी? टेक्निकली हमने 1 घंटा डिस्कशंस किया है, रीड राइट भी काफी कुछ कर लिया है, बट हमारा फोकस सिर्फ 2 ही चीज पे रहा है अभी तक, स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट. अब आगे चलेंगे, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर रखा है, अभी रीड राइट करवाएंगे आपको. प्रोएक्टिव रिएक्टिव के बारे में भी हमने डिस्कशंस ऑलरेडी कर रखा है, उसको भी रीड राइट करने चल रहे हैं अभी अपने. स्ट्रेटजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया था आपको, तो इसके लिए ना थोड़ा सा राइटअप लिखवाऊंगा मैं. थोड़ा लॉन्ग राइटअप होगा, जगह देख के लिखो प्लीज. आपके नए वाले बुक में ना अपने लास्ट में 3-4 पन्ना है लास्ट में नोट्स के लिए. यू मे इवन यूज दैट फॉर द टाइम बी. ऊपर में साइड में लिख लेना, चैप्टर 1 का है, सबसे पहले तो पता रहेगा कौन से चैप्टर का नोट्स आप लिख रहे हो. प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाला पार्ट के लिए लिखवा रहे लिखिएगा. Strategy is made for the future. Strategy is made for the future. Strategy is made for the future and the future is uncertain. And the future is uncertain. Hence,
The strategy has to be proactive. Hence, the strategy has to be proactive, where we anticipate the future events in advance. Hence, the strategy has to be proactive, where we anticipate the future events in advance. And accordingly develop the strategy. यहाँ 3 पार्ट में होगा आंसर, हाँ, जो लिखवा रहा हूँ 3 पैराग्राफ होगा काइंड ऑफ। प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, और फिर खाली प्रोएक्टिव या रिएक्टिव नहीं हो सकता, हेंस पार्टली होगा थर्ड पैरा में। हेंस द स्ट्रेटजी हैज टू बी प्रोएक्टिव। नेक्स्ट पैराग्राफ। The organization exists in a dynamic environment that is constantly changing. The organization exists in a dynamic environment that is constantly changing. That is constantly changing. And as the environment changes, the organization needs to react and adjust the strategy. The organization needs to react and adjust the strategy. The organization needs to react and adjust the strategy. Full stop. Any new strategy is also based upon the learnings of the past strategies. Any new strategy is also based upon the learnings of the past strategies. जब भी कोई नया स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो पुराने स्ट्रैटेजी के बेसिस पे बनाते हैं। पुराने स्ट्रैटेजी में हमने ऐसा किया था, ये अच्छा हुआ था, इसको ऐसे ही करते हैं। पुराने स्ट्रैटेजी में ऐसा किया था, इससे में गड़बड़ हो गया था, ये ऐसे नहीं करके ऐसे करते हैं। So any new strategy is based upon the learnings from the past strategy. Hence, various aspects of a business strategy are reactive. Hence, various aspects of the business strategy are reactive. Hence, various aspects of the business strategy are reactive. Full stop. Next line, next paragraph. 3 पैरा है, last. A business strategy cannot be only proactive.
A business strategy cannot be only proactive and ignore the events that are happening in the environment. A business strategy cannot be only proactive and ignore the events that are happening in the environment. And ignore the events that are happening in the environment. It cannot be only reactive and not anticipate the future. It cannot be only reactive and not anticipate the future. Full stop. Hence, a business strategy is partly proactive and partly reactive. Hence, a business strategy is partly proactive and partly reactive. Is partly proactive and partly reactive, where some aspects are in response to changing environment, where some aspects are in response to changing environment, where some aspects are in response to changing environment, while some aspects are based upon future anticipated opportunities and threats. And some aspects are based upon future anticipated opportunities and threats. Some aspects are based upon future anticipated opportunities and threats. I'll give you 1 minute. अच्छे से एक बार रीड कर लो जो आपने लिखा है. देखो, यू आर कंफर्टेबल विद द लाइन्स, विद द वर्ड्स, एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू हैव रिटन. फिर आगे बढ़ते हैं. लाइंस पढ़ के समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? ओके, चलो आगे बढ़े. अब यही प्रोएक्टिव रिएक्टिव के बारे में बुक में कुछ कुछ कंटेंट लिखा हुआ है जिसको रीड भी कर लेते हैं. आ जाओ. A company strategy is typically a blend of proactive actions and reactions to the dynamic environment, to unanticipated developments in the business environment.
Sir, if the question comes to write proactive, reactive, will we have to write 3 paragraphs? Yes, depends upon the marks. So generally the SM का पेपर का पैटर्न इज दिस कि अपने लिए ना SM में 5 मार्क के 10 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स ऑप्शंस वगैरह मिला के, आउट ऑफ विच यू हैव टू आंसर 35 मार्क्स. सो सारा क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है. अगर आंसर एग्जाम में क्वेश्चन आया स्ट्रेटेजीज प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, कमेंट 5 मार्क के लिए 2 लाइन तो नहीं लिख सकते. सो दैट इज हाउ यू राइट लाइक दिस अ प्रॉपर आंसर कि स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव होना चाहिए, क्यों 2 लाइन. स्ट्रेटेजी रिएक्टिव होना चाहिए, क्यों 2-3 लाइन. स्ट्रेटेजी खाली प्रोएक्टिव या खाली रिएक्टिव नहीं हो सकता, हेंस इट हैज टू बी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव. दैट इज हाउ यू मेक अ प्रॉपर फुल फ्लेजेड आंसर. समझ में आ रहा है ना. ऑब्वियसली हर आंसर आपको लिखवाएंगे नहीं, लेकिन आप ऑब्वियसली कुछ कुछ आंसर्स जो हमें लगता है ज़रूरी होगा हम वो लिखवा रहे होंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली राइटिंग का भी हैबिट लगेगा, कैसे लिखना है ये भी समझ में आएगा, सब कवर हो जाएगा. बस साथ साथ में चलते रहिएगा. ओके, प्रोएक्टिव रिएक्टिव, आगे बढ़ते हैं. इन अदर वर्ड्स, अ कंपनी यूजेस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटजीज टू कोप अप विद द अनसर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट. प्रोएक्टिव वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? प्लान्ड. रिएक्टिव मतलब अडेप्टिव. तो प्रोएक्टिव इज वेयर यू हैव प्लान्ड थिंग्स इन एडवांस, रिएक्टिव इज वेयर यू अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव होना चाहिए, रिएक्टिव होना चाहिए. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं. The strategy partly is deliberate and proactive. However, not every move is result of proactive planning. Things happen that cannot be fully anticipated or planned for. Sometimes some kind of strategic reaction or adjustment is required. Hence, partially a company's strategy is always developed in response to changing environment. मार्क करते चलना. ओके, as a reasoned response to unforeseen developments in the environment. अभी देखो यूपीआई वाला एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. इट वुड बी पर्टिनेंट टू मेंशन वन सच एग्जांपल इन द रीसेंट टाइम्स, दैट इज यूपीआई. यूपीआई हैज चेंज्ड द एंटायर डिजिटल पेमेंट लैंडस्केप इन इंडिया. पता है आज के ज़माने में वो छुट्टा वाला चेंज वाला तो पूरा इन्वायरमेंट ही बदल गया. आई वॉज रीडिंग ऑन लिंक्डइन, सो देयर वाज दिस इंटरेस्टिंग आर्टिकल कि ये जितने छोटे कैंडी वालों का बिजनेस था ये बहुत मैसिवली फॉल हो गया यूपीआई के वजह से. आप सोचेंगे सर क्या मजाक कर रहे हैं. एक्चुअल में किसी के पास चेंज नहीं रहता था, 2 रुपए का ये दे दीजिए, दुकानदार ही जबरदस्ती आपको 2 रुपए का चेंज दे देता, चेंज नहीं बना आप हमको 8 रुपए दे दीजिए. तो वो जबरदस्ती बेच बेच के उनका कैंडीज बिक रहा होता था. अब यूपीआई आ गया, सब डिजिटली पे कर रहे हैं, कोई चेंज का दरकार ही नहीं है. बिना मतलब का ये जो कैंडीज खरीदा बेचा और खाया जाता था वो बंद हो गया. So UPI has changed the way entire digital payment landscape in the world and has now even gone global. So obviously India से शुरू हुआ था but खाली इंडिया तक सीमित नहीं है, now it's gone global as well. It's a true example of made in India for the world. It was all because of a well-planned identification of a problem and then formulating a strategy and then executions. Okay, so that is how strategy is all about identifying a problem area, and then accordingly making a strategy to solve the problem. Now that we have understood about strategy, we will now focus on strategic management. अभी तक जो डिस्कशन था वो स्ट्रेटजी के बारे में था. Now the focus will be about strategic management.
तो हमने सेशन जब शुरू किया 4 चीज आपके साथ डिस्कस कर लिया था, व्हाट इज स्ट्रैटेजी, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड देन प्रोएक्टिव रिएक्टिव। तो स्ट्रैटेजी, मैनेजमेंट एंड प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाला पार्ट रीडिंग हमने कर लिया है, अब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वाला पार्ट रीड करने चल रहे हैं। यहां तक क्लियर है एवरीवन? चेक कर लो। ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, फिर इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस आज नहीं जाएंगे, फर्स्ट क्लास है। आई एम जस्ट गोना स्टिक टू व्हाट इज स्ट्रैटेजी, व्हाट इज मैनेजमेंट, व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, गिव यू अ लिटिल टाइम टू एब्जॉर्व। फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अ सब्जेक्ट है, बट या वी गोना गेट इनटू इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस वगैरह नेक्स्ट सेशन में। बट व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? द इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट essentially lies in enabling an organization to perform better than its competitors and its own past and present performance. तो अब वही काम पहले से और बेहतर कर पाओ, that is the objective of strategic management. Delivering superior returns as compared to the investors. The overall objective of strategic management is twofold. दो main objectives है strategic management का। क्या सर? To create a competitive advantage so that the company can outperform the competitors in all aspects and to guide the company successfully in the changing environment. बोला स्ट्रैटेजी के थ्रू हम दो चीज अचीव करना चाहते हैं सर। क्या दो चीज अचीव करना चाहते हैं? एक, कंपटीशन से लड़ना चाहते हैं, लड़कर उनसे एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं। थ्रू अ स्ट्रैटेजी हम कंपटीशन से लड़ना चाहते हैं, कंपटीशन से लड़के उनसे एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, दैट्स द ऑब्जेक्टिव। एंड दूसरा, थ्रू द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट वी वांट टू अडेप्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज डायनामिक, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के थ्रू हम कॉन्स्टेंटली अपने स्ट्रैटेजी को रिवाइज करके अडेप्ट करना चाहते हैं इन्वायरमेंट से। तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव दो है, टू अडेप्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड दूसरा टू कॉम्पीट विद द कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। The task of crafting, implementing and executing a strategy, बनाना, implement करना, execute करना is the heart and soul of managing a business. The term strategic management refers to, अब सुना, अभी तक हमने आपको बताया था strategic management was about three things: making a strategy, implementing the strategy and then कंट्रोलिंग टू सी इफ इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट। अब उसी को अडेप्ट इंक्रीज करके 5 स्टेप्स बना देंगे। तो पीछे में पहला 1 और 2 ऐड होगा, हाँ ध्यान देना। हमने कहा था स्ट्रैटेजी इज अबाउट मेकिंग अ स्ट्रैटेजी, implementing the strategy and then controlling to see if it is working properly or not. But strategy is made on the basis of, क्लास का अगर फर्स्ट डिस्कशन पहला 15 मिनट अगर आपको याद आए, strategy is made on the basis of, तो हमने फर्स्ट 15 मिनट में ये डिस्कशन किया था, द स्ट्रैटेजी इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाना पड़ेगा और उस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे स्ट्रैटेजी बनेगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करेंगे और फिर उसके बाद कंट्रोलिंग करके चेक करेंगे काम सही सही हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आएगा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर स्ट्रैटेजी आएगा, फिर इंप्लीमेंट करेंगे, फिर कंट्रोलिंग कर रहे होंगे। और गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स से भी पहले कंपनी का एक विजन और मिशन आता है। ये विजन मिशन क्या होता है नेक्स्ट क्लास में आने वाला है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मेरे लिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का 5 स्टेप्स होता है। सबसे पहले एक विजन और मिशन बनाना है, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाना है, फिर स्ट्रैटेजी बनाना है, फिर स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना है और फिर कंट्रोलिंग, मॉनिटर करके कंट्रोलिंग करना है। समझ में आ रहा है क्या? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अबाउट 5 थिंग्स। सबसे पहले विजन और मिशन बनाना है, स्ट्रैटेजी का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाना है, फिर स्ट्रैटेजी को बनाना है, फिर इंप्लीमेंट करना है एंड देन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग। यही चीज 5 स्टेप्स मिलेगा आपको इस पैराग्राफ में और फिर इस पैराग्राफ में। एक बार ध्यान से रीड करो, देखो
ओके, मार्क करना, ठीक है। अपने लिए स्ट्रैटेजी के 5 पार्ट हैं। सबसे पहले विजन, फिर ऑब्जेक्टिव्स बनाना, फिर स्ट्रैटेजी बनाना, फिर इम्प्लीमेंटिंग एंड corrective adjustments were deemed appropriate. The process does not end, it is a continuous process. Strategic management is not a one time process, it is a continuous process. जैसे management is not a one time process, it's a continuous process. आप प्लान बनाओगे, इंप्लीमेंट करोगे, कंट्रोलिंग करोगे, लेकिन इन्वायरमेंट डायनामिक है, बदल जाएगा, वापस एक रिवाइज स्ट्रैटेजी बनाओगे, इंप्लीमेंट करोगे, कंट्रोलिंग करोगे, इन्वायरमेंट डायनामिक है, फिर से बदल जाएगा, फिर से आप एक रिवाइज स्ट्रैटेजी बनाओगे, इंप्लीमेंट करोगे, कंट्रोलिंग करोगे. तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ साइक्लिकल कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस. चाहो तो ये लाइन लिख के रख लो. Strategic management is not a one-time process. It's a continuous cyclical process. Strategic management is not a one-time process. It is a continuous cyclical process. Next पैरा वापस सेम चीज बोलेगा. विजन बनाओ, इन्वायरमेंट को एनालाइज करेंगे, strategy formulation, strategy implementation and then controlling. वर्डिंग थोड़ा अलग अलग है लेकिन मोरलेस सेम है. तो ये विजन वगैरह बनाने के बारे में चैप्टर 1 में बात होगा. दिस इज चैप्टर 1. ये इन्वायरमेंट स्कैनिंग चैप्टर 2 एंड 3 है, एक्सटर्नल और इंटरनल. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन चैप्टर 4 है एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन चैप्टर 5 है. This is the सारांश of SM syllabus. ठीक है ना. तो टेक्निकली अपने SM में पूरा बस यही पढ़ने वाले हैं, यही चलता जाएगा अपने लिए. देखो क्लियर हो रहा है क्या? What is strategy, what is management and what is strategic management? Strategic management is about 5 things. विजन बनाना, विजन एंड मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करना एंड कंट्रोलिंग करना. 5 थिंग्स इन अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. देखिए यहां तक क्लियर है क्या? अभी तक जितना समझाया था वो सारा चीज यहां पे कवर किया है. यहां तक क्लियर है? एक बार चेक कर लो फटाफट एवरीवन. ओके, स्ट्रैटेजी के दौरान हम अभी एक और टॉपिक पढ़ेंगे, खत्म नहीं हुआ है क्लास, 15-20 मिनट का और है डिस्कशन. एक तो लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस, बेनिफिट्स नेक्स्ट डे करवाएगा, बट एक कनेक्टेड टॉपिक है जो आपको साथ में करवाएंगे. सुनो, स्ट्रैटेजी पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजी 3 लेवल पे बनता है, कॉर्पोरेट, बिजनेस या डिविजनल एंड फंक्शनल. सो understand a little, and when you understand, I'm sure with the conceptual clarity, when we read the content theory again तो easy रहेगा. डिस्कशन मोड है वापस है, ठीक है ना. अपना रीड एंड राइट मोड खत्म हुआ, जितना डिस्कस किया था उसको लेके, अब वापस डिस्कशन मोड है. सुनो, तो अपने लिए 3 लेवल पे स्ट्रैटेजी बनता है. अब ये 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा सा विजुअलाइज करो. लेट्स से आईटीसी का एग्जांपल देते हैं, शुड बी एबल टू रिलेट इट. आईटीसी का एक कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है और एक कॉर्पोरेट टीम है. कॉर्पोरेट टीम में बहुत सारे लोग हैं, हेडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, द सीईओ एंड द सीएफओ. द एंटायर टीम इज द कोर टीम जो पूरा ऑपरेशंस देखता है. इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरा कंपनी के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाता है, क्या काम कैसे कैसे करना है. दैट इज द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे नेक्स्ट लेवल पे आता है डिविजनल लेवल.
तो ये डिविजनल लेवल जो होता है, दैट इज द डिविजनल लेवल इज द लेवल एट विच एक एक बिजनेस का अलग अलग डिविजन्स होता है। तो आईटीसी के फूड्स का एक अलग डिवीजन है, होटल्स का एक अलग डिवीजन है, सिगरेट्स का एक अलग डिवीजन है, अलग अकॉर्डिंगली अलग अलग एक एक डिविजन्स बनाए जाते हैं। अब हर एक डिवीजन, सिगरेट्स है तो सिगरेट्स का प्रोडक्शन भी करना है, मार्केटिंग भी करना है, सेल्स भी है, तो ये सब सिगरेट्स के अंदर फंक्शंस हो गए। सिमिलरली फूड्स है तो फूड्स का प्रोडक्शन भी होगा, पैकेजिंग वगैरह, मार्केटिंग वगैरह, ये सब फंक्शंस हो गए। तो सबसे ऊपर है कॉर्पोरेट टीम, जो पूरा कंपनी, सारा डिपार्टमेंट, सारा बिजनेस के लिए ओवरऑल प्लान्स बनाता है और वो काइंड ऑफ टारगेट्स दे देता है डिविजनल मैनेजर्स को। फिर डिविजनल मैनेजर्स अपना स्ट्रैटेजीज बनाते हैं कि हमें लेट्स से फूड्स बिजनेस को हमने टारगेट दिया कि आपको 4,000 करोड़ का प्रॉफिट्स करना है एग्जाम्पल। तो वो 4,000 करोड़ का प्रॉफिट कैसे करेंगे, उसके लिए वो लोग क्या करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कि इतना प्रोडक्ट, ये वाला इतना बेचना है, ये वाला इतना बेचना है, इसका इतना प्रॉफिट आना चाहिए, इसमें इतना कॉस्ट होना चाहिए, ताकि हम 4,000 करोड़ का टारगेट मीट कर सके। ये डिविजनल स्ट्रैटेजीज बनेगा। फिर डिविजनल स्ट्रैटेजीज के हिसाब से फंक्शनल स्ट्रैटेजीज बनेंगे। तो फंक्शनल लेवल्स पे एक एक फंक्शन का मैनेजर्स होगा, हेड होगा, जो डिसाइड करेगा कि अब फूड्स के प्रोडक्शन में क्या कैसे कैसे होना चाहिए, उसका क्या मशीन कितना बजे चलेगा, कितना दिन चलेगा, क्या प्रोडक्शन पहले होगा, क्या बाद में होगा, ताकि जो प्रोडक्शन का टारगेट सेट किया गया वो अचीव किया जा सके। मार्केटिंग मैनेजर्स प्लान्स बनाएंगे, क्या सेल्स होना चाहिए, कितना क्वांटिटी, किस रीजन में क्या कैसे कैसे बेचना है, ताकि सेल्स का टारगेट मीट किया जा सके। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज बनेंगे जिसके हिसाब से टारगेट्स बनेगा, जो अचीव करने के लिए डिविजनल स्ट्रेटजीज बनेंगे, एंड डिविजनल स्ट्रेटजीज के बेसिस पे जो टारगेट्स निकलेगा उसके बेसिस पे फंक्शनल स्ट्रेटजीज बनेंगे, जिसके हिसाब से एक्चुअल एग्जीक्यूशंस एक एक फंक्शन में परफॉर्म किया जा रहा होगा। दैट्स हाउ द 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजीज विल वर्क टुगेदर। और भले ही फंक्शनल स्ट्रेटजी आपको लग रहा है सबसे लोएस्ट लेवल पे है, लेकिन फिर भी वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं दैट विल बी एट द ग्रास रूट लेवल, दैट विल ओवरसी द वर्किंग ऑफ ऑल द लेवल्स। समझ में आ रहा है क्या? ओके come to page 23, chapter 1, page 23, 1.23, strategic levels in organizations. Strategic levels in organizations, this is the topic that we just discussed। 3 लेवल पे strategies बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, corporate strategies, business level strategies and functional level strategies। कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? टॉप मैनेजमेंट बनाता है। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी कौन बनाता है? हर एक बिजनेस का हेड, फूड्स का हेड, सिगरेट्स का हेड, जो मिडिल मैनेजमेंट हो गया। और फंक्शनल स्ट्रैटेजीज कौन बनाता है? जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, जो एक एक फंक्शन को संभाल रहा होगा। और एक चीज सुन लो आगे बढ़ने के पहले, क्योंकि वो आगे काम आने वाला लाइन। आज जो कॉर्पोरेट मैनेजर होगा उसको सारे बिजनेस और सारे बिजनेस के सारे फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। जो कॉर्पोरेट मैनेजर होगा उसको सारे बिजनेस और सारे बिजनेस के सारे फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। जो बिजनेस मैनेजर होगा उसको बिजनेस के सारे फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन बाकी बिजनेस का नॉलेज जरूरी नहीं है, लेकिन बिजनेस के सारे फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। एक फंक्शनल मैनेजर को, लेट्स से मार्केटिंग मैनेजर को सिर्फ मार्केटिंग का नॉलेज का दरकार है, उसको फाइनेंस प्रोडक्शन का दरकार नहीं है। प्रोडक्शन मैनेजर को सिर्फ प्रोडक्शन का नॉलेज का दरकार है, फाइनेंस मार्केटिंग का दरकार नहीं है। लेकिन एक बिजनेस मैनेजर को मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन सबका नॉलेज होना चाहिए। एक कॉर्पोरेट मैनेजर को मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन प्लस सिगरेट, फूड, सारा बिजनेस, सारा फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? इसीलिए कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स को हम बोलते हैं जनरल मैनेजर्स, क्योंकि उनको सारे फंक्शंस वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए बिजनेस लेवल मैनेजर्स को हम बोलते हैं फंक्शनल मैनेजर्स, क्योंकि उनको सारे फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए।
लेकिन एक फंक्शनल मैनेजर्स को, बिजनेस मैनेजर्स एंड कॉर्पोरेट मैनेजर्स को हम बोलते हैं जनरल मैनेजर्स, क्योंकि उनको सारे फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन फंक्शनल मैनेजर्स को हम जनरल मैनेजर नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ एक फंक्शन का नॉलेज चाहिए, उनको सारे फंक्शन का नॉलेज नहीं चाहिए। ये लाइन समझ में आ रहा है क्या? देखो, द कॉर्पोरेट एंड द बिजनेस मैनेजर्स आर कॉल्ड फंक्शनल मैनेजर्स, but the corporate and business managers are called general managers because they need to have knowledge of all the functions. But the functional managers are not called general managers because they have to handle only one function, not all functions. Clear ho raha hai? A typical large organization is a multi-divisional organization that competes in different businesses. It has separate self-contained divisions. ये वर्ड समझ में आ रहा है क्या? देखो, self-contained divisions मतलब एक डिवीजन जिसके पास अपना सारा फंक्शंस खुद का है। तो कोई भी एक डिवीजन दूसरे डिवीजन पे डिपेंडेंट नहीं होता। आज आईटीसी के फूड्स के पास सारा काम खुद का वो खुद देखता है, उसको सिगरेट से कुछ लेना देना नहीं। होटल्स अपना सारा काम खुद देखता है, उसको सिगरेट से कुछ लेना देना नहीं। सिगरेट अपना सारा काम खुद देता है, उसको फूड्स होटल से कुछ लेना देना नहीं, एंड सो ऑन। It has separate divisions which work within themselves. सब अपना अपना काम खुद संभाल रहे होते हैं। Generally, there are 3 levels of management: corporate, business, and functional. General managers are found at the first 2 levels. Corporate managers are general managers. Business managers are general managers. But their roles differ depending upon the sphere of responsibility. मतलब समझा रहा हूं। फंक्शनल मैनेजर को पहला बात तो हमने जनरल नहीं किया कहा है, ये समझ में आ रहा है ना? क्यों नहीं किया ये कहा, ये भी समझ में आ रहा होगा, डिस्कस कर लिया है। तो कॉर्पोरेट मैनेजर और बिजनेस मैनेजर को हम जनरल मैनेजर बोल रहे हैं क्योंकि उनको सारे फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इन दोनों में भी क्या फर्क है? बिजनेस मैनेजर एक ही बिजनेस का सारा फंक्शन संभाल रहा होगा, कॉर्पोरेट मैनेजर सारे बिजनेस का सारा फंक्शंस देखेगा। तो कॉर्पोरेट मैनेजर और बिजनेस मैनेजर का स्फीयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायरा, काम का दायरा का फर्क है। काम दोनों जनरल मैनेजर है, सारा काम देख रहे होंगे, लेकिन दोनों के काम के दायरे में फर्क है। बिजनेस मैनेजर सिर्फ एक बिजनेस को देख रहा होगा, कॉर्पोरेट मैनेजर सारे बिजनेस को देख रहा होगा। सो कॉर्पोरेट मैनेजर और बिजनेस लेवल मैनेजर्स के काम के दायरे में मेन डिफरेंस आता है। देखो, क्लियर हो रहा है क्या? Okay. An organization is divided into a number of segments that work together to bring a particular product or service to the market. If a company provides several different kinds of products or services, it often duplicates these functions into a series of self-contained divisions to manage each different product or service. ये लाइन समझो। Such divisions are called SBUs. ये वर्ड SBU वापस आएगा आगे चल के अपने लिए, सिलेबस में है। लेकिन SBU क्या है? एक अलग डिवीजन है जिसका सारा अपना फंक्शंस खुद का वो खुद संभाल रहा होता है, उसका किसी दूसरे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। तो आईटीसी के अंदर सिगरेट्स इज वन SBU, फूड्स इज वन SBU। SBU और डिवीजन में भी एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है ये आगे चल के स्ट्रक्चर्स में सीखोगे चैप्टर 5 में जाके, लेकिन अभी के लिए उसमें फर्क समझाना अपना फोकस नहीं, अपना ही समझा रहे। कॉर्पोरेट लेवल के नीचे बिजनेस या डिविजनल लेवल आता है। बिजनेस का ही एक अलग वर्जन हो गया स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट्स, SBUs। तो एक बड़ा कंपनी होने से उसको अलग अलग इंडिपेंडेंट SBU में बांट दिया जाता है। अगर एक छोटा कंपनी होगा, एक या दो ही प्रोडक्ट है, तो वो एक ही कॉर्पोरेट के नीचे 2-4 मैनेजर होंगे जो सब कुछ संभाल लेगा। सेल्फ कंटेंड अलग अलग डिविजन्स बनाने का दरकार नहीं है। सेल्फ कंटेंड यानी नाम से समझो, एक बिजनेस जिसके अंदर सारा काम खुद का वो खुद कर रहा है, दूसरे बिजनेस की तो डुप्लीकेशंस हो जाता है। फूड्स के अंदर कुछ कुछ काम जो हो रहा होगा, कुछ रेपिटेटिव काम सिगरेट्स में भी हो रहा होगा, वही रेपिटेटिव काम होटल्स में भी हो रहा होगा एंड सो ऑन। लेकिन वो सब बिजनेस सेल्फ कंटेंड अपना काम अलग अलग कर रहा होता है। दे वर्क लाइक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ओनली, लाइक बट दे एक्चुअली
SBUs within the overall organization. समझ में आ रहा है? ये SBU वर्ड कई बार आएगा अपने सिलेबस में, चैप्टर 1 में आ रहा है, चैप्टर बीच में आई थिंक चैप्टर 2 या 3 में एक बार आएगा, वापस चैप्टर 5 में डेफिनेटली आएगा, तो कई बार आने वाला है, थोड़ा सा समझ के रखो। बिजनेस या डिवीजन को का ही एक अलग वर्जन हो गया SBU। कॉर्पोरेट के नीचे है बिजनेस या डिविजनल लेवल, उसी का एक वर्जन हो गया SBU। The corporate level top management consists of the CEO, who is the head, other senior executives, board of directors and corporate staff. तो कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में CEO होता है, सीनियर मैनेजमेंट्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, कॉर्पोरेट स्टाफ होता है। These individuals participate in the decision making within the organization. The role of corporate level managers is to oversee the development of strategies for the whole organization. ये लाइन समझ में आ रहा है क्या? The corporate level managers develop strategies for the whole organization. सिर्फ एक बिजनेस या डिवीजन नहीं, they develop strategies for the whole organization. Okay. क्या क्या काम करते हैं ये भी रेलेवेंट है देखना। दिस इंक्लूड्स डिफाइनिंग द विजन, मिशन एंड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, डिटरमाइनिंग व्हाट बिजनेस इट शुड बी इन। तो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, पुराना बिजनेस चालू रखना चाहिए या कहीं नया में जाना चाहिए, ये सब डिसाइड कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर का। बिजनेस लेवल मैनेजर थोड़ा डिसाइड करेगा उसका बिजनेस चालू रखना है या बंद करना है, उसको तो हमेशा लगेगा मेरा बिजनेस चालू रखो वरना मेरे को निकाल दिया जाएगा। तो ये कॉर्पोरेट लेवल होता है जो डिसाइड करता है कौन सा बिजनेस रहना चाहिए, कौन सा बिजनेस बंद कर देना चाहिए, कौन सा नया बिजनेस में एंटर करना चाहिए एंड सो ऑन। एलोकेटिंग रिसोर्सेज, हर एक बिजनेस के पास पैसा लिमिटेड होगा, इसको एलोकेट करना अमंग द डिफरेंट बिजनेसेस एंड प्रोवाइडिंग लीडरशिप फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कॉर्पोरेट मैनेजर्स। For example, Ahmedabad headquartered Adani Group is an Indian multinational conglomerate in a wide range of businesses like mining, ports and airports, power generation, cement. The main strategic responsibilities of the group chairman, Mr. Gautam Adani, is setting the overall objectives, allocating resources, deciding divest करना है, invest करना है और कौन सा business में रहना चाहिए या क्या नया M&A करना है, merger acquisitions. However, it is not their responsibility to develop strategies for individual areas such as financial services. अब एक बिजनेस के अंदर क्या काम कैसे कैसे करना है ये सब गौतम अडानी बैठ के नहीं डिसाइड करता है, वो बिजनेस हेड डिसाइड कर रहा होता है। ये ओवरऑल लेवल के जो डिसीजंस होते हैं ये टॉप मैनेजमेंट ले रहा होता है। The development of such strategies is the responsibility of those in charge called business level managers. In simple words, corporate level managers provide an organizational level view of the strategy. अभी सिर्फ corporate strategy का ही बात कर रहे हैं। Besides overseeing resource allocation, corporate level managers provide a link between the people and those who own it, who oversee the strategy, and those who own it, that is the shareholders. Corporate level managers, particularly the CEO, can be viewed as the guardian of the shareholders welfare. आज कंपनी अगर सही सही नहीं चल रहा तो उसके लिए CEO को जिम्मेदार पकड़ा जाता है, CEO को held liable किया जाता है. So they are responsible for guarding the shareholders welfare. It is their responsibility to ensure that the corporate and business strategies are consistent with maximizing shareholders' wealth. If they are not, CEO is likely to be held responsible for the same. देखो ये पूरा डिस्कशन था कॉर्पोरेट लेवल के बारे में. बीच में खाली SBU क्या होता है ये अपने समझ रहे थे, बाकी अपना मेन डिस्कशन पूरा रहा है अबाउट व्हाट इज
कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी टॉप मैनेजमेंट बनाता है, पूरा बिजनेस के लिए बनाता है, सारे बिजनेसेस के लिए बनाता है, ब्रॉडर एरियाज कवर करता है। उसके बाद इंडिविजुअली क्या करना है वो बिजनेस लेवल मैनेजर डिसाइड करेगा। कॉर्पोरेट लेवल के हेड होता है सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह पूरा टीम रहता है, लेकिन हेड सीईओ होता है, वही इंचार्ज होता है। ही इज द गार्जियन ऑफ द शेयर होल्डर्स वेलफेयर, ही हैज टू इंश्योर। एफएम में भी आप सुनते हैं हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन करना है, तो ये अल्टीमेटली सीईओ का जिम्मेदारी होता है टू इंश्योर दैट व्हाट वी आर वर्किंग इज टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ एंड वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, SBU इज अ सेल्फ कंटेन्ड डिवीजन, जो पीछे पढ़ा था हम लोगों ने, that provides a particular product or service for a particular market. The principal general manager or the business level manager is the head of the division. तो जो डिविजनल हेड होगा वो बिजनेस लेवल मैनेजर या जनरल मैनेजर जो होगा उसको बिजनेस हेड बोल रहे हैं। The role of this general manager is to translate the general statement of direction that come from the corporate level into concrete strategies for individual businesses. तो मिडिल मैनेजमेंट का बिजनेस लेवल मैनेजर का जिम्मेदारी होता है कि जो कॉर्पोरेट लेवल से ओवरऑल स्ट्रैटेजीज आ रहा है उसको ब्रेक डाउन करना इनटू स्ट्रैटेजीज फॉर इंडिविजुअल बिजनेसेस। कॉर्पोरेट लेवल और बिजनेस लेवल मैनेजर काम एक ही करता है, बस स्कोप ऑफ वर्क का फर्क है। देखना, thus whereas corporate level managers are responsible for strategies that concern individual all the businesses, business level managers are concerned with strategies for a specific particular business only. देखो लास्ट 5 मिनट्स ये वार्निंग हम दे देते ताकि आप लोगों को एक अलर्ट मिल जाए। अच्छा तो बस सर और कितना पढ़ना है और कितना पढ़ना है, पन्ना पलट पलट के लोग देख रहे होते हैं। लास्ट 5 मिनट्स तो कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर्स पूरा बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। बिजनेस लेवल मैनेजर्स ऑर्गेनाइजेशन के एक डिवीजन बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजीज बना रहे होते हैं। दोनों का काम एक ही होता है, बस स्कोप ऑफ वर्क का फर्क हो रहा होता है। फंक्शनल लेवल मैनेजर्स उसके नीचे आते हैं, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ काम जैसे कि HR, कस्टमर सर्विस एंड सो ऑन, that constitute a company or one of its divisions. एक मिनट इस लाइन पे रुकूंगा, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सुनो, चीजों को समझते हुए चलेंगे। आज अगर एक छोटा कंपनी हो जहां एक ही प्रोडक्ट है या 1-2 प्रोडक्ट है, तो कॉर्पोरेट लेवल के नीचे सीधा फंक्शनल मैनेजर्स आ जाएगा, बीच में डिविजनल का दरकार ही नहीं है। जब बिजनेस बहुत फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड ज्योग्राफिकली, देन वी नीड टू हैव डिविजन्स। अदरवाइज कॉर्पोरेट के बाद सीधा प्रोडक्ट लेवल, फंक्शनल लेवल्स आ जाएगा। समझ में आ रहा है? सो कॉर्पोरेट के बाद अगर फंक्शनल होगा, सो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शंस दैट विल बी अ पार्ट ऑफ अ कंपनी डायरेक्टली। वहीं अगर कंपनी के नीचे डिवीजन होगा, डिवीजन के नीचे फंक्शंस होगा, सो फंक्शनल मैनेजर्स विल हैंडल द फंक्शंस व्हिच विल बी अ पार्ट ऑफ अ डिवीजन। अब वो लाइन समझो, फंक्शनल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शंस दैट आर अ पार्ट ऑफ कंस्टिट्यूट अ कंपनी और डिवीजन। अगर छोटा कंपनी है तो फंक्शन सीधा कंपनी के नीचे आएगा, नहीं तो डिवीजन के नीचे आएगा। अगर एक छोटा कंपनी है तो कॉर्पोरेट होगा और उसके नीचे डायरेक्टली मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस, HR। दिस इज वेयर द फंक्शंस इज डायरेक्टली अ पार्ट ऑफ अ कंपनी। जब बड़ा कंपनी हो जाएगा तो कॉर्पोरेट के नीचे डिवीजन 1, डिवीजन 2, डिवीजन 3, एंड सो ऑन। यहां फंक्शंस आर अ पार्ट ऑफ अ डिवीजन। ये तो डायग्राम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अ फंक्शन कैन बी अ पार्ट ऑफ अ कंपनी और वन ऑफ इट्स डिविजन्स। देखो क्लियर हो रहा है? दरकार लगे तो डायग्राम कॉपी कर लो, स्क्रिबल करके रख लो, विल हेल्प यू आउट।
Okay. So functional managers are responsible for functions which is a part of a company or one of its divisions. Thus, a functional manager's sphere of responsibility is confined to one organizational activity, whereas general managers oversee the operations of a whole company or its division. तो जनरल मैनेजर पूरा कंपनी या पूरा डिवीजन को संभाल रहा होता है, जबकि फंक्शनल मैनेजर सिर्फ एक एक्टिविटी मार्केटिंग या फाइनेंस संभाल रहा होता है. फंक्शनल मैनेजर confined to one activity, general managers whole company or division. फिर बोला although they may not be responsible for overall performance of the organization, nonetheless they still have a major role. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं फंक्शनल लेवल मैनेजर्स ग्राउंड रियलिटी बताते हैं, उसके हिसाब से कॉर्पोरेट बिजनेस स्ट्रेटजीज बनता है. तो भले ही फंक्शनल मैनेजर्स आपको हायरार्की में नीचे दिख रहा होगा, लेकिन स्टिल दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. ये बुक बोलना चाह रहा है. Functional managers provide most of the information that makes it possible for business and corporate level managers to formulate their strategies. देखो, 3 levels of strategies, बस इतना ही आज के डिस्कशंस में क्लियर हो रहा है क्या? देखो, कॉर्पोरेट लेवल एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं. हमने सबसे पहले सीखा मैनेजमेंट इज अबाउट 5 थिंग्स: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. मेकिंग अ स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी एंड कंट्रोलिंग टू सी इफ इट इज वर्किंग प्रॉपर्ली. फिर हमने समझा व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी. इट इज द गेम प्लान, द रोड मैप बाय विच वी ट्राई टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स. फिर हमने समझा व्हाट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, 5 थिंग्स. पहले विजन और मिशन बनाना, फिर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बनाना, फिर स्ट्रैटेजी बनाना, फिर इंप्लीमेंट और फिर कंट्रोलिंग टू अडैप्ट टू द डायनामिक एनवायरनमेंट. हमने समझा स्ट्रैटेजी 3 लेवल पे बनता है: कॉर्पोरेट, बिजनेस या डिविजनल एंड फंक्शनल. हमने सीखा कि स्ट्रैटेजी खाली प्रोएक्टिव भी नहीं होना चाहिए, खाली रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए. प्रोएक्टिव होना चाहिए टू एंटिसिपेट द फ्यूचर एंड टेक कैप्चर द अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. एट द सेम टाइम रिएक्टिव होना चाहिए टू रिएक्ट टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट. बट खाली प्रोएक्टिव या खाली रिएक्टिव भी नहीं, पार्टली होना चाहिए. देखो, आज के सेशन में इतना ही पढ़ रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है ना? देख लीजिए एक बार एवरीवन. क्लासेस ऐसे ही चलने वाली है. आई होप यू फाइंडिंग द क्लासेस इंटरेस्टिंग. ऐसे ही अपनी क्लासेस आगे चलेगी. एंड दिस इज जस्ट द फर्स्ट सेशन. अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बट SM is very very interesting. A lot of interesting facts is gonna keep coming up. We'll have a lot of interesting cases that we'll keep discussing. चाहे ITC का एग्जाम्पल हो क्लासेस में, अडानी ग्रुप का एग्जाम्पल्स हो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेते चलेंगे तो और रिलेट कर पाओगे, समझ पाओगे चीज़ों को. ठीक है ना? आपको सिर्फ यही करना है. हम लोग मेजर चंक ऑफ लाइंस, 80% लाइंस रीड कर रहे हैं, बट आपको साथ साथ में एक पैरेलल रीडिंग घर पे देते रहना है, तब चीज़ें और सेट हो जाएगी माइंड में, कंफर्टेबल. बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं रहे हम, 10 पन्ना हार्डली पढ़ा है हमने आज की क्लास में. बट आपके लिए 10 पन्ना क्लियर होगा तो नेक्स्ट डे पता चलेगा पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट पहला. ठीक है ना? ऐसे ही चलेगा क्लासेस. तो आप साथ साथ में रिवाइज करते चलिए, हम साथ साथ में आपके लिए सिलेबस कवर करते चलेंगे. एंड दैट इज़ हाउ वी कीप प्रोसीडिंग. ओके, यहाँ तक आप लोग रिवाइज करके आइए, नेक्स्ट यहीं से कंटिन्यू करते हैं. ओके, आज के लिए इतना ही एवरीवन. देन वील रैप अप द सेशन एट दैट. Thank you so much. And if you have any of your other friends who are still interested, who haven't taken up the classes till now, so please let them know that we've just started off with the classes, so that you know they can also be a part of these sessions and enroll and take the benefit of. Because क्या ICI मैट छोड़ के कहीं से भी और पढ़ना, मतलब I'll tell you, मेरा मानना है कि ICI मैट is the bare act. मैं अपना मैट, my mat will be a version of ICI mat, and when you read my mat, that will and write, that will be your version of my version, and there will be a big diversion. So the idea is, अगर डायरेक्ट ICI मैट 4 बार पढ़ के जाओगे ना, बेस्ट है पढ़ाई करने के लिए और एग्जाम में लिखने के लिए, which is why all the classes will be ICI mat based only. So that's one of our USPs as well. So if accordingly you can let your friends also know about it. And यहीं से नेक्स्ट क्लास फिर कंटिन्यू करते हैं एवरीवन. थैंक यू सो मच. आई होप यू हैड गुड फन एंड वील कंटिन्यू फ्रॉम योर नेक्स्ट डे. थैंक यू.